السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمدہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ وقال اللہ تعالی فی موضع آخر، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر و احسان، اس کی بے شمار نعمتیں رحمتیں ہمارے جانوں کے اوپر ہے، جس کی تعریف لکھی جائے تو سیاہی ختم ہو جائے گی مگر تعریف باقی رہے گی۔ وہ اللہ جو ہم سبوں کا پالنہار ہے، رازق ہے، مالک ہے، خالق ہے۔ ساتھ ہی ساتھ اس اعتبار سے بھی اللہ رب العالمین کا شکر و احسان بجا لانے کی ضرورت ہے کہ اللہ رب العزت نے ہم سبوں کو اپنے کلام کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کی غرض سے ہمیں یہ موقع عنایت فرمایا۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم اسے ایک اللہ کی عبادت کرے جو ہماری عبادتوں کا تنہا مالک ہے۔ محترم سامعین، حاضرین، ناظرین اکرام، آج کے درس میں انشاءاللہ تعالی سورۃ الانعام آیت نمبر 94 سے ترجمہ و تفسیر آپ کے سامنے بیان کی جائے گی انشاءاللہ العزیز۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الانعام آیت نمبر 94 کے اندر بیان کیا، وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادًا، اور یقیناً تم تنہا تنہا ہمارے پاس لائے جاؤ گے، کما خلقناکم اول مرۃ، جیسا کہ ہم نے تم کو پہلی مرتبہ پیدا کیا، وترکتم ما خولناکم وراء ظہورکم، اور جو کچھ بھی ہم نے تم کو عطا کیا تم نے اس کو اپنے پیچھے چھوڑ دیا۔ وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم، اور ہم تمہارے ساتھ تمہارے ان سفارشیوں کو نہیں دیکھتے جن کے بارے میں تم گمان کرتے تھے، انہم فیکم شرکاء، جو تمہارے معاملات میں آئیں گے، شریک ہوں گے۔ لقد تقطع بینکم، حالانکہ اللہ رب العالمین نے تمہارے درمیان قطع رحمی ڈال دیا۔ وَضَلَّ عَنْكُمْ مَا كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ، اور جس چیز کے بارے میں تم گمان کرتے تھے اس نے تم کو گمراہ کر دیا۔ آپ دیکھیں کہ آیت کریمہ کا تعلق آخرت میں ہونے والے عمل سے ہے۔ آخرت میں کیا عمل ہے؟ یعنی جو کچھ اسکرپٹڈ ہے دنیا کے اندر، قرآن میں بیان کیا جا رہا ہے، احادیث میں بیان کی جا رہی ہے، سب اسکرپٹڈ ہے۔ جو باتیں بیان ہو رہی ہے وہ باتیں آخرت میں ہو رہی ہیں، اس سے کوئی چیز کٹنے والی، ہٹنے والی اور مٹنے والی نہیں۔ اور یہاں پہ اللہ رب العالمین نے ہمارے تعلق سے، یہاں تک کہ ہم جو گمان کرتے تھے اس کے تعلق سے اللہ رب العالمین نے یہاں بیان کیا۔ ایک بات دیکھیں، برائی اچھائی کے مقابلے میں دنیا کے اندر بہت آسان ہوتی ہے۔ نہ صرف یہ کہ آسان ہوتی ہے بلکہ وہ ایک لذت پیدا کرتی ہے، ایک ذائقہ پیدا کرتی ہے۔ برائی کا جہاں تک تعلق ہے
अच्छाई के मुकाबले में तेज रफ्तार होती है। बुराई अच्छाई के मुकाबले में, अच्छाई के खिलाफ ज़्यादा इंसान को पसंद आती है। इंसानी फितरत है कि इंसान अच्छाई से ज़्यादा बुराई को पसंद करता है, लेकिन अल्लाह तबारक व ताला ने इसी अच्छाई और बुराई की तमीज़ करने के लिए हमें ईमान दिया है, हमें मोमिन बनाया है। मोमिन किसे कहते हैं? ईमान लाते हैं अल्लाह पर, हम अल्लाह के रसूल पर, अल्लाह की किताबों पर, अल्लाह के फरिश्तों पर, क़यामत के दिन पर, तकदीर पर, चाहे अच्छी हो या बुरी, इसी को मोमिन कहा जाता है। मोमिन अल्लाह ने इसलिए हम लोगों को बनाया कि ईमान असल में क्या है? एक एग्ज़ाम है। ईमान असल में एक ईमान नहीं बल्कि इम्तिहान है। और जब इंसान की ज़िंदगी में इम्तिहान आता है, जैसे हम स्कूलों में पढ़ते थे, कॉलेजेस में पढ़ते थे, मदरसों के अंदर पढ़ते थे, तो जब इम्तिहान का वक्त आता था तो हम अपने रूटीन को तब्दील करते थे। तब्दील ये करते थे कि जो सोने का रूटीन है, जो खाने का रूटीन है, जो उठने बैठने का, घूमने फिरने का, उसमें बड़े पैमाने पे तब्दीलियाँ हैं। जहाँ कभी हम हॉस्टल में 10 बजे सुबह 10 बजे रात में सो जाया करते थे, वहाँ 1 बजे सो रहे। जहाँ हम फजर के अजान में उठते थे, अजान से पहले उठ जा रहे हैं, 1 घंटा उठ कर पढ़ लेंगे तो अजान उठ। एक बात बताई जाए, ईमान मेरे भाई असल में वही आजमाइश और इम्तिहान है जो अल्लाह ताला ने आखिरत के मुताबिक बयान किया। ईमान ये है कि एक तरफ नेकी है, एक तरफ बदी है ना, हमारे सामने है। ईमान बतलाता है कि ये बहुत कठिन है, बड़ी मुश्किल तरीन है, लेकिन निजात इसी में। ईमान ये भी बताता है कि तो बहुत आसान है, लेकिन गुमराही इसी में। अब ये हमें परख और समझने के लिए अल्लाह ताला ने हमें अकल व शऊर दिया है। ये हमारे पास अकल है। मिसाल के तौर पर एक पटरी पे ट्रेन आ रही है, हमें नज़र भी आ रही है काफ़ी दूरी पर है और आने वाली है, तो कोई हमसे कहे कि भाई यहाँ पे तुम कुछ देर के लिए खड़े हो जाओ, ट्रेन आने में देर है, तो हम अकल का सहारा लेंगे। वहाँ पे शख्स क्या कह रहा है और अकल की कसौटी पे जब तोल रहे हैं तो क्या नतीजा निकल रहा है, दोनों में फर्क है ना। वो कह रहा है कि बड़ी दूर अपने सामने है, वो तो फर्क झपकते आ जाएगा, तो हम तय करते कि नहीं भाई हम नहीं खड़े होंगे, हम अपना सेफ जोन में खड़े होंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन यहाँ पे जिन चीज़ों के बारे में बयान कर रहा है फर्क के, जैसे मिसाल के तौर पर आज निकाह कितना मुश्किल हो गया, लेकिन ज़िना कितना आसान है। अब तोलेंगे तो आपको हैरानी हो जाएगी। बाप ने कहा निकाह करने में फूफा को बुलाओ, खालू को बुलाओ, इनको नहीं पूछे तो ये हो जाएगा, उनको नहीं पूछे तो वो हो जाएगा, ऐसे नहीं करेंगे तो वैसे हो जाएगा, वो करेंगे तो ये हो जाएगा। इतना फटाक से 5 मिनट देना होगा, 5 मिनट में उसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं किसी को। इसमें कभी डर नहीं लगा, शायद फूफा जान जाएंगे तो क्या होगा, खालू जान जाएंगे तो क्या होगा, मामू जान जाएंगे तो क्या होगा, ये जान जाएगा तो क्या होगा, दोस्त जान जाएंगे तो क्या होगा, माँ बाप जान जाएंगे, उनको इल्म हो जाएगा तो क्या होगा। ऐसा कुछ नहीं है। एक निकाह जिसको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हलाल किया है, उसको हमने कितना मुश्किल बना दिया है। आज जिसको अल्लाह ने हराम किया कितना आसान हो गया है। यही वजह है कि ज़िना की तादाद बढ़ रही है, वजह तो यही है। तो अल्लाह ताला ने अकल दिया, शऊर दिया। ईमान असल में इम्तिहान है, और इम्तिहान यही है कि हम अपने ईमान की कसौटी पर तोले, इसको नेक आमाल को और बुराई को। नेक आमाल याद रखिए हमेशा कामयाबी मुश्किल से मिलता है। आज दुनिया के अंदर जितनी कामयाब शख्सियत है, उनकी ज़िंदगी आप पढ़ेंगे तो एक दुश्वार पूर्ण ज़िंदगी उन्होंने गुजारी है। काफ़ी स्ट्रगल, मेहनत, मशक्क़त, रातों को जागना, दिन को दिन ना समझना, रात को रात ना समझना, तब जाकर वो एक मकाम को पहुँचे हुए हैं, जिन मकाम को देखकर हम भी चाहते हैं कि अल्लाह वो मकाम हमें अता फरमाए। जानते हैं, तो आप देखिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यहाँ पर नेकी और बदी को जांचने के लिए अल्लाह ने ईमान दिया। अल्लाह क्या कह रहा है? अल्लाह कह रहा है वलक़द जीतुमूना फुराता कमा खलक़नाकुम अव्वल मर्रती। अल्लाह कह रहा है कल आखिरत में तुम तन्हा तन्हा आओगे मेरे पास। बात सही है। दुनिया का हर इंसान, जैसे इंटरव्यू होता है ना दुनिया के अंदर, कि हम किसी कंपनी में जाते हैं तो हमारा इंटरव्यू होता है, चाहे 4 आदमी क्यों ना बैठ जाए, लेकिन एक पर्सनल सवाल हमसे होगा ही होगा। चलिए आप बताइए, अब आपसे सवाल होगा, कल अल्लाह के हुजूर फुरादा, ये फर्द की जमा है अरबी में। अपनी फर्द मतलब एक, उसकी जमा एक फुरादा, कई एक फुरादा, एक एक करके तुम लोग जमा हो, हमारे पास आओगे। अल्लाह कह रहा है हमारे पास आओगे। जा ये जियो के माना होता है आना अरबी के अंदर, और ज़हाबा या ज़हब के माना होता है जाना। अल्लाह कह रहा है एक एक करके आओगे, ठीक है। अब क्या क्या होगा? कमा खलकनाकुम अव्वल मर्रती। एक सवाल हमें ज़हन में आता है
کوئی آدمی انتقال کر گیا جوانی میں، کوئی آدمی انتقال کر گیا بڑھاپے میں، تو اب اللہ کے سامنے جب جائے گا قیامت کے دن تو کس پوزیشن میں جائے گا؟ اللہ نے اشارہ دیا کما خلقناکم اول مرۃ، جیسا کہ ہم نے تم کو پہلی مرتبہ پیدا کیا۔ تو پہلی مرتبہ انسان پیدا ہوتا ہے تو اس انسان کا اصل شکل کسی کا ہے معلوم ہے؟ اصل شکل ہوتا ہے جوان، انسان کا اصل شکل ہوتی ہے جوانی کے، اس لیے کہ اس کے اندر طاقت ہوتی ہے، توانائی ہوتی ہے، قوت ہوتی ہے، ایک کیا ہے کہ اس کے اندر کوالٹی ہوتی ہے، ایک سب کچھ اس کے پاس ہوتا ہے جو اس ڈائریکٹ پر وہ سارا کام کر سکتا ہے۔ اللہ نے کہا کما خلقناکم اول مرۃ، جیسا کہ ہم نے تم کو پہلی مرتبہ پیدا کیا۔ تو پیدائش سے لے کے موت تک، بچپن سے لے کے بڑھاپے تک جو چہرہ ہوتا ہے مین چہرہ وہ جوانی کا ہوتا ہے۔ بچپن سے کئی چہرے بدلتے ہیں، بدلتے بدلتے ایک مقام ایسا آتا ہے کہ ایک چہرہ آئیڈینٹیفائی ہو جاتا ہے، اب اسی چہرے سے ہم بوڑھا بھی ہوتے ہیں، اسی چہرے سے ہم بوڑھا ہوتے ہیں۔ تو کوئی بوڑھا آدمی اگر اپنا جوانی کو فوٹو دکھائے بتا دے کہ ہم ہیں، تو آپ اس میں ایک چیز نوٹ کر لیں گے جو اس پہ میچ کر رہا ہوں، ایک چیز تو کوئی ہوگا جو میچنگ میں آ جاتا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ جیسے کہ ہم نے تم کو پہلی مرتبہ پیدا کیا، دوسری مرتبہ تم آؤ گے، دوسری مرتبہ پیدا کا نہیں ہونا ہے، تم مر کے کہاں چلے گے؟ قبر میں، قبر سے اللہ اٹھائے گا کہ نہیں اٹھائے گا؟ دوسری مرتبہ ہم لوگ کی زندگی ہوگی۔ تو اب دوسری مرتبہ کے بارے میں اللہ کہہ رہے ہیں کہ جیسا شکل پہلی مرتبہ تھا اسی شکل میں وہی شکل پہ ہم اللہ کے سامنے جائیں گے۔ وَتَرَكْتُمْ مَا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ، اور جو کچھ تم کو ہم نے دیا اس کو تم نے پیچھے چھوڑ دیا۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ دنیا کے اندر ہم نے تم کو نیکی کے بہت سارے راستے دیے، آپشن دیے، موقع دیا، کئی مواقع ملے، لیکن ہم نے کیا کیا؟ تم مواقع کو گنوا دیا، کھو دیا۔ دنیا کی محبت میں، دنیا کی چاہت میں، دنیا سے دل لگانے کی وجہ سے ہم نے ان موقعوں کو گنوا دی، جبکہ ان موقعوں سے ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے تھا، ہم نے اس موقع سے فائدہ نہیں اٹھایا۔ اللہ یہ بات کہہ دے گا، اب اللہ کہے گا وَمَا نَرَى مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمُ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ، ہم تمہارے پاس تمہارے ان سفارشیوں کو نہیں دیکھتے جن کے بارے میں تم گمان کرتے تھے۔ سمجھا رہا ہے؟ جیسے دنیا میں کیا ہوتا ہے، ہم ایک آدمی کی بڑی تعریف کرتے ہیں، جب ہم سے اس کے بارے میں پوچھا جائے تو میرے لیے تو بہت اچھا ہے، بہت بہت گریٹ آدمی۔ اب ایک اللہ نہ کرے مصیبت ہمارے پاس آ گئی، وہ آدمی نظر ہی نہیں آ رہا، تو آپ لوگ کہیں گے نا کہاں ہے وہ آپ کا بہت گریٹ تھا، آج نظر نہیں آ رہا ہے، بڑی تعریف کرتے تھے آپ، کہاں ہے آج آپ پریشان ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ دنیا میں کہتے تھے نا کہ فلاں آدمی کا سفارش کر دے گا، اس کے دامن پکڑ لیں گے، اس کا یہ آنچل پکڑ لیں گے، وہ پار گھاٹ لگا دے گا۔ اللہ کہ کہاں ہے وہ لوگ؟ ہم نہیں دیکھ رہے ہیں۔ اللہ پوچھے گا کہ ہم نہیں دیکھ رہے ہیں۔ وما نرا معکم شفعاءکم الذین زعمتم، اچھا یہ بتاؤ کہ تمہارے جو سفارشی تھے جن کے بارے میں تم گمان کرتے تھے، سوچتے تھے، آج تمہارے ساتھ تم لوگوں کو ہم نہیں دیکھ رہے ہیں۔ انہم فیکم شرکاء، جن کے بارے میں تم کہتے تھے کہ یہ ہمارے معاملات میں ہمیشہ شریک ہیں، یہ ہمیں اکیلا نہیں چھوڑیں گے، یہ ہمیں تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ تو اللہ یہ کہے، اس کو تنگ نہیں کہہ سکتے اللہ، بلکہ یہ کہے گا کہ اسی کی بات کو ریپیٹ کرے گا، کہاں ہے وہ؟ ہم نہیں دیکھ رہے ہیں۔ اسی کے اوپر میں اللہ نے کہا فرادا، تم تنہا تنہا میرے پاس آؤ گے، یعنی ہوتا ہے ایک ایک کر کے، ون بائی ون، ایک ایک کر کے تم ہمارے پاس آؤ گے۔ دیکھیں یہاں پہ ایک نقطہ یاد رکھے کہ دنیا کے اندر جتنے بھی ہمارے ساتھی مل جائے، دوست مل جائے، احباب مل جائے، تعلقات میں اچھے مل جائے، خاص بیسٹ فرینڈ مل جائے، یہ سب دنیا تک کی چیز ہے۔ جب اللہ کے دربار میں ہم حاضر ہوں گے نا تو بالکل سنگل تنہا، کوئی نہیں ساتھ ہوگا۔ لا یسأم حمیم الا حمیما، اس دن دوست کو نہیں پوچھے، اس لیے دنیا میں مر رہے تھے، اس کے بغیر ہمارا کوئی کام نہیں ہو رہا ہے۔ یہاں پہ اللہ نے کہا کہ تم اس دن ہمارے پاس آؤ گے تو تنہا تنہا آؤ گے۔ اب اللہ تعالیٰ اس کو یاد دلائے گا کہ تم تو دنیا میں کہتے تھے کہ ان کی سفارش سے آرام سے ہم جنت میں چلے جائیں، اب کون روکے گا؟ پار ہیں ہم لوگ۔ تو اللہ پوچھے کہاں ہے وہ لوگ؟ وہ بیچارہ تنہا چلا گیا، وہ تلاش کرو تو ملوے نہیں کر رہا ہے۔ اللہ سے پوچھے کیا کھوجے ہو، ڈھونڈ رہے ہو کیا کوئی چیز؟ کہاں ہے وہ لوگ؟ کہاں ہے وہ لوگ جس کے بارے میں بڑی تم گمان رکھتے تھے، بڑا یقین رکھتے تھے؟ کہاں ہے وہ؟ لقد تقطع بینکم، اللہ ان کے درمیان کیا ہے؟ تفرقہ ڈال دیا، جدائی ڈال دیا اللہ رب العالمین، کاٹ دیا ان کے رشتے کو۔ اللہ شروع سے کہہ رہا ہے کہ حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم، حسبنا اللہ ونعم الوکیل ومن یتوکل علی اللہ فهو حسبہ۔ کتنی آیات اللہ نے قرآن میں بیان کی کہ اللہ ایک ذات ہے واحد جو ہمارے ساتھ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی رہے گا انشاءاللہ۔
لیکن کیا اس کی کنڈیشنز ہے، صورتیں کیا ہیں؟ صورتیں یہی ہے کہ اس کا کہنا ہمیں کسی پر بھی توقل نہیں کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مرض الموت میں تھے، آپ کی بیٹی فاطمہ کو خبر ملی کہ آپ کے ابا کی طبیعت بہت زیادہ ناساز ہو گئی ہے، آپ فوراً آئیے۔ وہ تشریف لے گئی، دیکھیے ابا کی حالت کو بڑے پریشان تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک عادت تھی کہ آپ اپنی اولاد میں 4 بیٹیاں ہی باقی تھیں، بیٹے تو بچپن میں انتقال کر گئے تھے، تو جس قدر وہ محبت کرتے تھے اپنی بچیوں سے، تو ان کی عادت تھی کہ جب ان کی بچیاں تھیں نا، اوپر کوئی جگہ یعنی اونچے مقام پر بیٹھے ہیں، اتر کے نیچے آ جاتے اور بچی کو وہاں بیٹھاتے، بیٹھو یہاں بیٹھو، یعنی بیٹی آئی تو اتر کے نیچے آئی اور بیٹی کو کرسی پہ بیٹھا دیا۔ اتنی شفقت ان کو اپنے بچوں سے تھی۔ اب ان کی تکلیف کو دیکھ کر بڑی رونے لگی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ، کیونکہ ان کی 4 بیٹیوں میں سے 3 بیٹیاں تو زندگی میں انتقال کر گئی، ان کی زندگی میں ایک ہی بیٹی باقی تھی جو فاطمہ، ان کی زندگی میں یہ انتقال کر گئی۔ تو اللہ کے رسول نے کہا وہاں پہ کہ دیکھو میری بیٹی فاطمہ ایسا ہے کہ ابھی بھی وقت ہے میرے پاس، ابھی میں زندہ ہوں، سانسیں چل رہی ہیں، کچھ مانگنا ہے تو مانگ لو کہ ابا ہم کو یہ دے دیجیے، ابا ہم سے کل قیامت میں کچھ نہیں دے پاؤں، کل قیامت کے دن میں کسی بھی نفع نقصان کا مالک نہیں رہوں۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی لگتے جگر، اپنی دختر نیک حضرت فاطمہ بنت محمد سے کہہ، جن کے بارے میں ہم سوچ رہے ہیں کہ ہم نبی کے دامن کو پکڑ کے پار ہو جائیں گے، وہ نبی اپنی بیٹی کو پار نہیں کر رہے، یہ کیسے ہو جائے گا؟ ابھی جو مانگنا ہے مانگ لو، ابھی ہم زندہ ہیں، جو چیز مانگو گی ہم سن لیں گے، اگر ہوگا تو دیں گے، نہیں ہوگا تو معافی مانگ لیں گے، لیکن کل قیامت کے دن یہ مت سوچنا کہ میں محمد کی بیٹی ہوں تو میں جنت میں چلی جاؤں، یہ کبھی نہ سوچنا، کیونکہ کل میرے پاس اختیار بھی نہیں رہے گا۔ اللہ کہ لقد تقطع بینکم، ہم نے تمہارے درمیان دراریں ڈال دی، وَضَلَّ عَنْكُمْ مَا كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ، جس کے بارے میں تم گمان کرتے اس نے تم کو گمراہ کر دیا، جس کے بارے میں تم گمان کرتے تھے اسی کے سلسلے میں تم گمراہ ہو گئے، اس کے تعلق سے تم گمراہ ہو گئے۔ اگر قرآن میں بھی اور آگے آئے گی آیات انشاءاللہ تعالیٰ سے کوٹ کیا جائے گا کہ یہ جن کو ہم اللہ کا شریک ٹھہرا رہے نا، وہ کل مکر جائیں گے اللہ کے سامنے، وہ کہیں گے کہ اللہ ہم نے کبھی نہیں کہا تھا کہ ہم سے یہ چیزیں مانگو، جھوٹ بول رہا ہے۔ ہم پھنس جائیں گے کہ جن کے اوپر ہم پورا ڈیپینڈنٹ تھے دنیا کے اندر، بالکل یہ عزم مصمم پختہ ارادہ کر چکے تھے کہ اسی کے پاس رہنا ہے، اسی کے ساتھ رہنا ہے، اسی کے طریقے پر رہنا ہے، یہ کل قیامت میں ہمیں بخشا دے گا اور ہمیں جنت میں دے دے گا۔ یہاں پر اللہ کہہ رہا ہے کہ وہ کہاں ہے، وہ بلاؤ نا ان لوگوں کو، تو نظر ہی نہیں آ رہے فیلڈ میں، بلکہ اللہ کے سامنے تنہا فرادہ کا جو لفظ آیا ہے، فرد جمع ہے، ہم اکیلے اللہ کے سامنے رہیں گے، بالکل سیپریٹ انٹرویو ہوگا، ہم رہیں گے اور اللہ رب العالمین نے 1 by 1، کوئی دوسرا نہیں رہے گا، 1 to 1 ہوگا، ایک بالکل 1 to 1 اللہ رہے گا، ہمیں کوئی نہیں رہے گا، اور زبان بند، اور ہمارے سارے اعضاء جو ہے وہ جواب دیں گے، آنکھ بتائے گی، کان بولے گی، ناک بولے گی، ہاتھ بولے گا، پاؤں بولے گا، زبان پر تالا لگ جائے گا، زبان نہیں بولے گا، جو دنیا میں بول رہا ہے وہ آخرت میں نہیں بولے گا، اور جو دنیا میں خاموشی وہ آخرت میں بولے گا۔ یہ بھی دیکھیے عجیب انداز ہے اللہ رب العالمین کا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ آخرت کے منظر کو بیان کرنے کے بعد اللہ رب العالمین بیان کر رہا ہے اپنی صفات کو۔ اللہ کہہ رہا ہے ان اللہ فالق الحب والنوا، سورہ انعام آیت نمبر 95 بے شک اللہ رب العالمین دانا اور گٹھلیوں کو پیدا کرنے والا ہے۔ دیکھیے قرآن کے اندر جس چیز کو دنیا میں حقیر جانتے ہیں نا، آم کھائے گٹھلی پھینک دی، کبھی اس پر غور نہیں کرتے، چلو 2 گٹھلی رکھتا اس پر غور کیا، آخر غور کیا جائے کہ آخر یہ کیسے ہو، درخت ہوا، پھول نکلا، انکور پھوٹا، پھر اس سے کیا چھوٹے چھوٹے پتے نکلے، پھر پتا ہٹ کر پھول ہٹ کر یہ پھل کیسے ہو رہا ہے، پھر کچا، پھر پکا، پھر اس کو بیج بولتے ہیں، بچہ بولتے ہیں، کچا آم، اور گٹھلی کی شکل بن گیا، گٹھلی کو پھاڑ کر اس کے اندر جو ہے بیج ہے، آخر یہ کیسے ہو رہا ہے؟ سوال یہ ہے کہ آٹومیٹک دور میں یہ آٹومیٹک اس دور سے چل رہا ہے جبکہ آٹومیٹک نام کی چیز نہیں تھی، سائنس نام کی چیز نہیں تھی، تو اللہ تعالیٰ اس وقت سے کر رہا ہے ایک بیج ہم دانا ہو رہے، اتنا بڑا پیڑ، اتنا بڑا لکڑی، اتنا بڑا شاخ، اتنا تنا، اتنے پتے، اتنے درخت کہاں سے ہو جائے؟ تو اللہ اس کے بارے میں بیان کر رہا ہے ان اللہ فالق الحب والنوا، بے شک اللہ رب العالمین دانا اور نوا گٹھلیوں کو پھاڑنے والا، فالق اصل میں پھاڑنے والا کا معنی ہوتا ہے، لیکن یہ پیدا کرنے کے معنی ہم کر سکتے ہیں، پیدا کرنے والا یا پھاڑنے والا ہے، دونوں سے معنی نہیں۔
युखरिजुल हय्य मिनल मय्यित, अल्लाह जिंदों को निकालता है मुर्दों से, व मुखरिजुल मय्यिती मिनल हय्य, और मुर्दों को निकालता है जिंदों में से। अब इसको समझिए कि जिंदा को मुर्दों से कैसे निकालता है और मुर्दे को जिंदा से कैसे निकालता है। देखिए अल्लाह रब्बुल आलमीन को बेशुमार निशानियां दुनिया के अंदर है। जिंदा मुर्दा सिर्फ वो नहीं होता है जो आदमी मरते घाट पे चला गया, जनाजा पे चला गया, वो सिर्फ जिंदा मुर्दा नहीं होता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन पेड़ पौधों के अंदर निशानियां रखे हुए हैं, पेड़ पौधों के अंदर निशानियां। मुर्गी का जो बच्चा होता है कहाँ से पैदा होता है? अंडे से। तो अंडा जिंदा है कि मुर्दा है? एक मुर्गी है वो अंडा दे रही है, और भी जो डायनासोर वगैरह जो अंडा ही देते हैं जिससे क्या है बच्चे पैदा होते हैं। चिड़िया जो अंडा ही देती है जिससे बच्चा पैदा होते हैं। तो चिड़िया जिंदा है, जिंदा से क्या अल्लाह निकाला? मुर्दा को निकाला, अंडा को। अंडा क्या है? मुर्दा है। मुर्दे से क्या निकाल दिया रब्बुल आलमीन? जिंदा को निकाल दिया। कितनी मिसालें अल्लाह ताला ने दुनिया के अंदर रखी हुई है कि आखिर ये पॉसिबल कैसे है, ये मुमकिन कैसे है? इन चीज़ों से अल्लाह कैसे क्या कर दे रहा है? जो चाहता है कर देता है। जिंदा से मुर्दा को निकाल दे रहा है, मुर्दे को जिंदा। अगर खेती बाड़ी पे आप जाएं तो जमीन क्या होती है? एक मुर्दा होती है। आप उसमें दाना बो दीजिए, बीज बो दीजिए, बीज बोने से देखेंगे कि खेत खलियान हो जाएंगे। खेत खलियान गेहूँ के, चावल के, धान वगैरह जो है निकल जाता है, दाल वगैरह जो है सब निकलने लगता है। सब्जियां जो है, प्याज वगैरह, आलू जो है जमीन के नीचे से निकल रही है। आप बो रहे हैं बीज और निकल क्या रहा है? और वो इंसानी जिंदगी की ज़रूरियात है जो अल्लाह ताला ने दुनिया के अंदर पैदा किया है। बहुत सारे पैगंबर ऐसे थे, जैसे हजरत शोएब अलैहिस्सलाम, ये लोग खेती बाड़ी करते थे। पैगंबरों को अल्लाह ने किसान बनाकर पैदा किया। किसानी किसी अंग्रेज की देन नहीं है कि कैसे किसानी करेंगे, कैसे अनाज उगाएंगे। आज हम लोग बहुत सोचते हैं, खासकर वो मुसलमान भाई जिनको दीन का इल्म नहीं है, तो इसका सारा क्रेडिट उन्हीं लोगों को देते हैं, इनकी ईजाद है। अल्लाह ताला ने बहुत सारे पैगंबरों को खेती बाड़ी करने वाला बनाया, यानी किसान बनाकर भेजा था। वो खेतियाँ करते थे। अल्लाह के नबी के ज़माने में खेतियाँ होती थी, खजूर की खेती होती थी, मुनक्का किशमिश की खेतियाँ होती थी। उस ज़माने में बड़े बड़े बागीचे हुआ करते थे, बड़े बड़े बाग हुआ करते थे। आप सोचे, ऐसा नहीं कि अरब की ज़मीन रेगिस्तानी थी तो वहाँ खेती नहीं हुआ करती थी, वहाँ होती थी पहले भी और आज भी हो रही, लेकिन वो क्वांटिटी में नहीं होती जितना उसको चाहिए। वो एक अलग बात है, वो डिप्लोमेटिक फॉरेन रिलेशन होता है। आप उसके प्याज खरीद रहे हैं, आपसे कंबल खरीद रहे हो, आपसे कुछ खरीद रहे हो, कुछ खरीद रहे हैं। जो जैसा पैदा कर रहा है, कोई तेल पैदा कर रहा है तो हम तेल उससे खरीद ले रहे हैं, हम कपड़ा पैदा करते हो, हमसे कपड़ा खरीद रहा है ना। ये एक अलग चीज़ है। लेकिन सरजमीन की बात हो, इन्नल्लाह फालिकुल हब्बि वन नवा, बेशक अल्लाह ताला दाना और गुठलियों को पैदा करने वाला, फाड़ने वाला है। युखरिजुल हय्या, वो जिंदों को निकालता है, मिनल मय्यिति, मुर्दे से, व मुखरिजुल मय्यिति, और मुर्दों को निकालता है, मिनल हय्य, जिंदों से। ज़ालिकुमुल्लाह, यही अल्लाह है। अल्लाह कह रहा है यही सब काम अल्लाह करता है, यही अल्लाह है। तो अन्ना तुफकुन, तो तुम अल्लाह के ताल्लुक से कहाँ भटक रहे हो? तुम अल्लाह के ताल्लुक से कहाँ पलट रहे हो, कहाँ फिर रहे हो? ये भी देखिए अल्लाह ने इस्तिफ़हामी अंदाज में बयान किया, कहाँ पलट रहे हो अल्लाह के ताल्लुक से। आप कुरान पढ़ते जाए और ऐसी ऐसी मिसालें अल्लाह ताला बयान करता है कि कभी हमारा जहन भी नहीं जाता कि आखिर चीज़ें कैसे, जैसे गुठली का जिक्र हुआ है, कभी जहन नहीं जाता कि अगर इस पर हम गौर करें तो मुसलमान हैं, ईमान को मजबूत करके आखिर ये चीज़ें कैसे मुमकिन हो जा रही, कैसे पॉसिबल है। आगे अल्लाह कह रहा है आयत नंबर 96 के अंदर, फालिकुल इस्बाही, सुबह को फाड़ने वाला है। अरे सुबह के बारे में अल्लाह बोलेगा, सुबह की जमात इस्बाह, सुबह को फाड़ने वाला, पैदा करने वाला है। जो रात है ना, लोग ईशा की नमाज पढ़ के खा पी कर सोएंगे, तो जब उठेंगे लेकिन अंधेरे में सोए तो उजाले में उठ रहे हैं, तो आखिर ये हुआ कैसे? आखिर ये कैसे हुआ? हाँ, घर में लाइट जला के सो गए तो कोई बुझा दिया तो पता चल जाएगा कि अम्मी आई देखी कि हम लोग सो गए थे तो बुझा दिलाई, ये तो पता चल जाएगा कि अम्मी बटन को दबा दी या घर के अपराध दबा दी तो अंधेरे में अंधेरा हुआ। लेकिन ये कैसे मुमकिन है? कैसा ऑटोमेटिक है? कहाँ उसका स्विच है, कहाँ कनेक्शन है, कहाँ मेन स्विच है, ये ऑटोमेटिक हो जा रही और बिल्कुल टाइम टू टाइम हो रहा है। ये भी सोच ले, अगर हमको किसी जगह पानी टंकी होता है ना, हम तरफ पानी टंकी होता है तो म्यूनसिपल की तरफ से एक आदमी मुकर्रर किया जाता है, भाई आपको इतना बजे नल खोलना है, इतना बजे बंद करना। उसमें भी टाइम टू टाइम नहीं हो पाता है, तो सो ही जाता है, नल खुला ही नहीं, हम सोचते कि टंकी फट गया, कपड़ा तो वो आया ही नहीं है, हमको लगता है कहीं लीकेज है, वो ड्यूटी पे नहीं गया है। और गवर्नमेंट यही बात कहती है कि हाँ ड्यूटी पे नहीं गया,
सच बताएंगे तो फंस जाएगी। बाद में जाता है बेचारा ऑन करता है तो पानी गिरना शुरू होता है और कभी भी पानी पी जाता है जो भी। लेकिन एक आदमी होता है, एक आदमी मुकर्रर है। आप सोचिए कि सुबह और रात बार बार बदल रहा है, फिर रहा है। एक दिन में हम दो चीजें देख रहे हैं, एक सुबह को देख रहे हैं, एक रात को देख रहे हैं, और ये डेली का मामूल है। आखिर कैसे मुमकिन, कैसे? और एक जमाने से हो रहा है, जब से दुनिया कायम है एक जमाने से हो रहा है। और कभी भी ये काम होने में कभी भी ऐसा नागा नहीं हुआ कि चलो एक फरिश्ता भूल गया और दिन रह गया 24 घंटे, ऐसा कभी नहीं हुआ है। तो अल्लाह ने सुबह का जिक्र क्यों किया कुरान में कहा? और अल्लाह ने कहा वस्सुबहि इज़ा तनफ़्फ़स, सुबह के बारे में अल्लाह ने कहा कि अब कसम है सुबह की जब वो सांस ले। मेरे भाई मॉर्निंग भी एक जानदार चीज है, कुरान कह रहा है सुबह जिसको हम कहते हैं ना वो एक जानदार चीज है। वस्सुबहि इज़ा तनफ़्फ़स, और कसम है सुबह की जब वो सांस ले। तो हम तो जानते हैं कि सांस इंसान लेता है, जानवर लेता है, जो जिंदा होता है वो सांस लेता है। जो गैर जानदार है वो तो सांस नहीं लेगा। ये पानी का गिलास पानी तो गैर जानदार है, ये सांस कैसे लेगा? मोबाइल सांस कैसे लेगा? दीवार सांस कैसे लेगी? लेकिन सुबह सांस लेती है। सोचो सुबह जो है सांस लेती है, यानी वो जिंदा चीज है। बहरहाल फालिकुल इस्बा, सुबह का पैदा करने वाला है। वजाल लैला सकनन, और अल्लाह ताला कह रहा है कि और अल्लाह ने रात को बनाया। वजाला जाल लैला सकनन, और अल्लाह ने रात को बनाया। क्यों? सकनन, सुकून के। और सूरह अम्मा में अल्लाह ने कहा ना वजअलना लैला लिबासा, हमने रात को तुम्हारे लिए लिबास बनाया। लिबास इंसान क्यों पहनता है? सुकून के लिए, आराम के लिए, आराम मिलेगा। अल्लाह ने यहाँ कहा वजअल लैला सकना, हमने रात को सुकून का जरिया बनाया। देखिए हमको तो बहुत पुरानी हिस्ट्री नहीं मालूम, लेकिन जैसे दादा नाना वगैरह जूट मिल में काम करते थे, ब्रिटिश दौर की बात है, तो उस जमाने में नाइट ड्यूटी नहीं होती, अब होती है। उनका कहना था कि रात सोने के लिए, तो जो जूट मिल के मजदूर होते थे, हमारे नाना अभी भी हयात से, दादा अभी रमजान के कुछ पहले इंतकाल किए, वो भी कहते थे नाइट ड्यूटी नहीं होती। कभी नहीं हुआ, जब तक ब्रिटिश गवर्नमेंट थी नाइट ड्यूटी हम लोगों ने कभी नहीं की। इंडियन गवर्नमेंट के आने के बाद नाइट ड्यूटी का रिवाज आया। वो लोग कहते थे कि रात सोने के लिए। देखिए बात ही नहीं को किसको मानते थे, किसको पूछते थे, ये अलग चीज़ है। वो एक चीज़ पर ध्यान देते थे कि जो मजदूर हमारे लिए काम करेगा उसको सुकून कहाँ से मिलेगा, उसकी बॉडी को राहत कब मिलेगा? रात की नींद से, रात की नींद से उसकी बॉडी को सुकून मिलेगा। तो जानते थे ब्रिटिश वाले, इसीलिए लोग नाइट ड्यूटी नहीं करवाते थे। दिन में काम होगा, रात में कोई काम नहीं, रात का शिफ्ट जो है बंद रहता है। सोच लो, इसलिए कि उनकी यहाँ भी चीज़ें होती इंजील के अंदर, वो पढ़े होंगे इस चीज़ को कि क्या लिखा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने। अल्लाह ने यहाँ भी कहा कि वजाल लैला सकनन, अल्लाह ने रात को बनाया सुकून के लिए। अब देखिए कि जो सेहत जो है मेरे भाई, हम लोग उर्दू अखबार पढ़ते थे तंदुरुस्ती हजार नेमत, आज भी याद है, वो ऐसे नहीं लिखा रहता था। हकीकत है कि अगर इंसान के अल्लाह ना करे, अल्लाह हम सबको सेहतमंद रखे, आमीन। आप देख ले कि आप अपने घर में आपके भाई है, बहन है, बीवी है, बाल बच्चे हैं, माँ है, बाप, आप उनके बड़े अजीज हैं। अल्लाह ना करे आपकी सेहत डाउन हो जाएगी ना, एक वक्त तक लोग छोड़ देंगे आपको। कितना आपको लेके पैखाना करवाएंगे, पेशाब करवाएंगे, आपको हदीस बदलवाएंगे, आपको डॉक्टर के पास ले जाएंगे, छोड़ देंगे एक वक्त पे। यार उठाइए इसको, बोल देंगे उठाकर, वो मोहब्बत खत्म हो जाएगी। सोचे अल्लाह ने कितनी बड़ी दौलत हम लोगों को दे रखी, सेहत, कि अपने पाँव से चल कर अपने काम पे चले जाते हैं, ड्यूटी से आ जाते हैं, नमाज को जाते हैं, बाजार को जाते हैं, सारे काम अपनी सेहत से अल्हम्दुलिल्लाह कर रहे हैं। अल्लाह हम सबको तवाना तंदुरुस्त रखे, आमीन। इतनी बड़ी चीज़ है। तो सेहत में एक चीज़ है नींद। नींद बहुत बड़ी चीज़ है। आपको मालूम होना चाहिए कि बहुत से हमारे अपराध ऐसे भाई ऐसे हैं जो नींद की गोली खाते हैं, जो नींद की गोली खाते हैं, अगर ना खाए तो गोली नहीं आए, सारी रात में जागते हैं, सोचते सोचते जाग जाएंगे। हमें जो नींद आ जा रही है ना, कितनी शिकायतें अल्लाह से करते हैं ना, या अल्लाह एसी कब देगा, कब पंखाई में रह रहे, फिर दोस्त को देख रहे हैं, उसको देख रहे हैं, इसको देख रहे हैं, वो तो एयर कंडीशन है, एसी लग गया, मेरा कब लगेगा। बड़ी शिकायतें रहती हैं। कोई पूछ लिया भाई आपका, अरे बस क्या बड़े, हम लोग गरीब आदमी हैं, हम लोग बड़े आदमी हैं। डरना चाहिए इस तरह की बातें बोलने से। क्या नहीं दिया अल्लाह ने, बिस्तर पर गए सो गए, क्या ये नेमत नहीं है रब्बुल आलमीन की? नींद की गोली की जरूरत नहीं है, दवा की मेडिसिन की जरूरत नहीं। खाना खाकर लेटे, थोड़ी सी गुफ्तगू के बाद बच्चों के साथ सो गए, सुबह उठे। ये अल्लाह की बहुत अजीम नेमत है, हमारी सेहत का एक राज भी है नींद। तो नींद जो राज है मेरे भाई, ये बड़ी कीमती शय है, इसको सोने में इस्तेमाल करें।
वो वाला सुना नहीं, रात को सोए 11 बजे उठ रहे, वो नींद की बात नहीं हो रही। अल्लाह के रसूल की हदीस याद है ना कि ईशा के बाद फौरन सो जाओ, आप सल्लम की हदीस है, ईशा के बाद फौरन सो जाओ, सोने का रिवाज बनाओ। तो ये देखिए कि उस जमाने में ब्रिटिश लोग जो थे उन लोगों ने अपनी फिल्म, जब तक वो यहाँ पर गवर्नमेंट चला है, बंगाल की बात यूपी की, उन्होंने नाइट ड्यूटी नहीं करा, इसका रिवाज ही नहीं था नाइट ड्यूटी का। वो तो इन लोगों को पहला धचका कब लगा नाना दादा को, जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आई और ये नोटिफिकेशन आया कि अब नाइट ड्यूटी होगी, उनको धचका लग गया ठीक है। वो तो कभी किए नहीं, कैसे ही बंगाल में हम लोग का अटैक हो रहा है, इनका कभी हुआ नहीं, कैसे हो रहा है? उसी तरीके से उनको धचका लगा कि नाइट ड्यूटी तो वो कभी किए नहीं, नोटिस आ गया कि अब से नाइट ड्यूटी चलेगा। हैरानी हुई, अल्लाह ने वही बात यहाँ बयान किया मेरे भाई, वजअल लैला सकना, और अल्लाह ताला ने रात को बनाया सुकून के लिए, वशम्स वल कमर हुस्बाना, और सूरज और चांद को हिसाबन अल्लाह ने बनाया। हिसाबन, हिसाबन का मतलब समझते हैं, बड़ी लंबी तफसीर है, अगर इस पर तफसीर आदमी करेगा 2 दिन लग जाएगा, लेकिन शॉर्ट में समझ लें। हिसाबन मतलब ये होता है कि सूरज को अल्लाह ने इतने बैलेंस में रखा है ना कि आदमी जल नहीं जाए। जैसे आग से आदमी जल जाता है ना, अगर आग इंसान को अल्लाह ना करे किसी को आग छू जाए तो बॉडी जल जाएगा, तो अल्लाह ने सूरज में गर्मी रखा है कि जलेगा नहीं इंसान। आपने कभी सुना है कि सूरज की गर्मी से इंसान जल गया, राख हो गया, ऐसा कुछ सुनने में आया है? अगर कहानियां होंगी यूट्यूब वगैरह पर, कभी सुनने में आया है कि यह हकीकत में कि सूरज की किरणों से, सूरज की रोशनी से एक आदमी कबाब की तरफ जा गया? सुने कभी नहीं। हिसाब अल्लाह ने बनाया है, यानी गर्मी भी आएगी, सर्दी भी आएगी, सारी कुछ एक बैलेंस रहेगा। बहुत ज़्यादा होगा, हम लोग पसीना पसीना हो जाएंगे, बेचैनी हो जाएगी गर्मी की वजह से, जलेंगे नहीं हम लोग। इतना अल्लाह ने हिसाब से पैदा किया है कि इंसान को जला नहीं सकता। हाँ, कब जलेंगे? जब उसके करीब चल जाए। तो करीब जा रहा है तो अपनी मर्जी से जा रहा है, अल्लाह तो नहीं भेज रहा है, हम गलती कर रहे हैं, है ना? तो करीब जाएंगे तो इस तरह की चीज़ें होंगी। इसी तरह अल्लाह ने चांद को हिसाबन बनाया है। चांद का मतलब होता है कमरी, इससे हम तारीख तय करते हैं। चांद की तारीख क्यों बोलता है? क्योंकि अरबी कैलेंडर जो है, हिजरी कैलेंडर, वो चांद ही से शुरू होता है, चांद से खत्म होता है। तो अल्लाह ने चांद को भी हिसाबन पैदा किया है अल्लाह ताला ने, तारीख समझने के लिए। क्या कितनी तारीख है, आज कितनी तारीख है? उसके बाद अल्लाह ने कहा ज़ालिका तकदीरुल अज़ीज़िल अलीम, और ये ठहरी हुई चीज़ है जो अलीम जानने वाला और गालिब अल्लाह की तरफ से। ये ठहरी हुई चीज़ है, एक जगह अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ठहरा दिया कि इसके जरिया से क्या होगा, इसके जरिया से क्या होगा। उसके बाद अल्लाह ने कहा आयत नंबर 97, वह हुवल्लज़ी जअला लकुमुन नुजूमा, वो अल्लाह है जिसने तुम्हारे लिए सितारों को पैदा किया। सितारे, चांद सितारों की बात हो रही है। चांद को अल्लाह ने क्यों बनाया? अल्लाह ने बयान किया। सितारों को अल्लाह ने क्यों बनाया? लितहतदू बिहा, ताकि इसके जरिए से तुमको रास्ता मिल जाए, फी ज़ुलुमातिल बर्रि वल बहरी, ज़मीन और समंदर के अंधेरों में इसके जरिए से तुमको रास्ता मिल जाए। पहले जो कश्तियाँ समुद्र में चलती थी ना, दिन में ठीक चलती थी, रात में सितारों के जरिए चलती थी। उसी से अंदाजा लगाया जाता था कि हमको पूरब की तरफ जाना है, कि पश्चिम की तरफ जाना है, कि उत्तर की तरफ, दक्षिण की तरफ। आज इसकी कोई अहमियत नहीं है, लेकिन ये सारी टेक्नोलॉजी वहीं से फॉलो कर रही है, शुरुआत वहीं से हो रही है। हाँ, इसकी स्टडी में जाएंगे तो पता चलेगा। सितारों को अल्लाह ने रास्ता दिखाने के लिए कहा। फी ज़ुलुमातिल बर्रि वल बहर, अल्लाह ने दिन का जिक्र नहीं किया, तारीकी का। जुल्मत उर्दू का भी लफ्ज़ है, उसी को जुल्मात अरबी में कहा जाता है, कि समंदर और खुश्की यानी ज़मीन की तारीकियों में, अंधेरों में रास्ता दिखाने के लिए अल्लाह ने सितारों को बनाया था। सितारे इसलिए रात में निकलते, रात में निकलते, उससे अंदाज़ा उस ज़माने में कि कश्ती को किस तरफ मोड़ना है। जहाँ हम जा रहे हैं वो रास्ता सितारों के जरिए से वो तय करते थे, तो इस सिमत में जाना है। अल्लाह ताला ने किसी भी चीज़ को बेमाना या बेमकसद पैदा नहीं किया है। आगे अल्लाह ने कहा कद फस्सलनल आयाति लिकौम यालमून, वो कौम जो जानती है, हम उनके लिए खोल खोल कर अपनी आयात और निशानियों को बयान करते हैं। यानी इसका मतलब क्या हुआ? जानकार किसे कहते हैं? अल्लाह ने जानकार के बारे में जिक्र किया, यालमून, जो जानते हो, अमल करते हो। जानकार उस शख्स को कहा जाता है कि जब उनके पास सच्चाई आ जाए तो उसको कबूल कर दे। सच्चाई को कबूल करने वाले को जानकार कहा जाता है, हकीकत को मानने वाले को जानकार। हम हकीकत जानते हैं और मुंह मोड़े हुए हैं, तो हम जानकार कैसे हो सकते हैं? हम हकीकत से मुंह नहीं मोड़ सकते। लोग कहते हैं ना कि आप हकीकत से मुंह नहीं मोड़ सकते, मतलब क्या हुआ?
मतलब आप जानबूझ कर आप अनजान बन रहे हैं, बिल्कुल आप जो है एकदम उस पर अड़े हुए हैं, मानने को तैयार नहीं, कि गलत है। अल्लाह कह रहा है कि इन्हीं लोगों के लिए हम अपनी आयत को खोल खोल के बयान करते हैं। फिर अल्लाह ने कहा वहुवल्लज़ी अंशअकुम मिन नफ्सिन वाहिदा, वही ज़ात है, वो अल्लाह है जिसने तुमको एक जान से पैदा, अल्लाह ताला ने तुमको एक जान से पैदा किया। एक जान से मुराद है आदम अलैहिस्सलाम है, हम लोग सब उन्हीं की औलाद हैं, इसीलिए हमको आदमी कहा जाता है। मोहम्मद के मानने वाले को मोहम्मद ही कहते हैं, आदम के जो आदम से पैदा उनको आदमी कहते हैं, है ना, निस्बत उन्हीं की तरफ है। अल्लाह ने कहा कि वही अल्लाह है जिसने तुमको एक जान से पैदा किया। फमुस्तक़र्रु व मुस्तौदउन, बस कहीं पर तुम ज़्यादा ठहरे और कहीं पर कम चंद लम्हा ठहरे। मुस्तक़र और मुस्तौदा का माना समझिए। मुस्तक़र ज़्यादा दिन ठहरे मतलब माँ की कोख में 9 महीना, बाद जगह तुम ज़्यादा दिन ठहरे, कहाँ, माँ की कोख में 9 महीना रहते हैं ना हम लोग सब। मुस्तौदा और बाप का सलब, आप जानते हैं ना कि नुतफ़ा इंसान का निकलता है तो इधर से आता है, तो बाप के यहाँ नुतफ़ा था, माँ से चला गया रहम में, तो वो तो 1 सेकंड में चला गया, मिनट में चला गया। बाप से निकल के कहाँ चला गया, माँ के रहम में, वहाँ ज़्यादा ठहरे, बाप के यहाँ कम ठहरे। अल्लाह जानता है कि इंसान के किस नुतफ़े में उसकी औलाद है, ये अल्लाह को मालूम कि किस नुतफ़े से हिलाफ से औलाद पैदा होगी। तो बाप के सलब से यह निकला नुतफ़ा माँ के रहम में चला गया, तो बाप के यहाँ से तो 5 मिनट निकल गया, बमुश्किल 1 मिनट, लेकिन माँ के कितना दिन रहा, 9 महीना। हम सब अपनी माँ की कोख में 9 महीना थे। अल्लाह उसका जिक्र कर रहा है कि हमने तुम सबको एक जान से पैदा, बस किसी जगह तुम ज़्यादा ठहरे, किसी जगह तुम कम ठहरे। कद फस्सलनल आयाति लिक़ौम यफ़क़हून, हम लोग अरबी मदारिस का एक सब्जेक्ट आता है फ़िक़्ह। फ़िक़्ह मतलब होता है, फ़िक़्ह मतलब क्या होता है, एक दुआ है तफ़क़्क़ुह फ़िद्दीन, अल्लाह तुमको दीन की समझ दी। तो फ़िक़्ह मतलब समझ होता है, समझना। अल्लाह कह रहा है कद फस्सलनल आयाति लिक़ौम यफ़क़हून, वो कौम जो समझदार होती है, तहकीक के हम उन्हीं के लिए अपनी आयात को तफसील से खोल खोल कर बयान करते हैं। फसल मतलब तफसील, डिटेल में तफसील से खोल खोल कर हम बयान करते हैं उस कौम के लिए जो समझदार। यानी अल्लाह इशारतन कह रहा है कि समझदार के लिए इशारा काफ़ी है। जो कौम समझदार होगी उन चीज़ों से सीखेगी, उन चीज़ों से सबक हासिल करेगी और अपने अमल को दुरुस्त करेगी, और दुरुस्त करने के साथ साथ उस पर अमल पैरा होगी। उसके बाद आयत नंबर 99 अल्लाह कह रहा है वहुवल्लज़ी अंज़ला मिनस समाई माअन, वही वो अल्लाह है जिसने आसमान से पानी को बरसाया। तो बारिश जो होती है ना, इसको कौन बरसाता है, अल्लाह ताला बरसाता है। पानी को बरसाया फ़अख़रजना बिही नबाता कुल्लि शैइन, और उससे हर चीज़ के नबातात उगा दिए, हर चीज़ के नबातात उगा दिए। फ़अख़रजना मिन्हु खदिरन, और इससे सब्ज़ शाखें निकाल के लाए। नुख़रिजु मिन्हु हब्बन, और हमने इससे दाने निकाले मुतराक़बन, जो ऊपर चढ़ने वाले थे। यानी दाना कहाँ हम लोग बोलते हैं, ज़मीन के अंदर, ज़मीन से जो फसल उगती है ऊपर की तरफ उगती है ना, मुतराक़बन ऊपर की तरफ जाती है, नीचे की तरफ नहीं जाती। प्याज भी जो उगता है ना, तो उसकी जो पत्ते निकलते हैं ज़मीन के ऊपर ही निकलते हैं, वो अलग बात है कि ज़मीन के अंदर रहते हैं, और उसको हम लोग खींचते हैं तो प्याज की शक्ल में वो दाना निकलता है। व मिनन नख़्लि मिन तलइहा किनवानुन दानियतुन, और खजूर के दरख्त में से भी जो तने निकलते हैं ना, वो नीचे की तरफ लटकते रहते हैं, जो खश होते हैं, खश कहते हैं ना। आप देखेंगे जो हम लोग छोटा खजूर इंडिया में होता है, वो सब झूलते रहते हैं और नीचे लटकते रहते हैं। तो अरब के अंदर जो खजूरें होती है जिससे रोज़ा इफ्तार करते हैं, हाँ, तमर जिसको कहा जाता है अरबी के अंदर, नहल भी कहा जाता है, तो इसको अल्लाह कह रहा है कि हमने उसको पैदा किया उसी दाने से, उसी बारिश के पानी से जो नीचे की तरफ लटकता रहता है। व जन्नातिन मिन अनाब व ज़ैतून व रुम्मान, और अंगूर, अनाब कहते हैं अंगूर को, इनब वाहिद है, उसकी जमा अनाब आती है, अंगूर व जैतून, और जैतून व रुम्मान और अनार, इसके भी बागात हमने उगाए। मुश्तबिहन, कुछ फल ऐसे होते हैं जो सिमिलर होते हैं, एक जैसे होते हैं। वो गैर मुतशाबिह, और कुछ जो है डिफरेंट होते हैं, अलग होते हैं। फलों में आप देखेंगे ना, कुछ फल एक जैसे लगते हैं, कई दफा धोखा खा जाते हैं कि दो लोग क्या है, कभी देखिएगा अमरूद की शक्ल में कई फल होते हैं, दूर से लगता है अमरूदी है, करीब जाते हैं तो कुछ और रहता है। उन्ज़ुरू इला समरिही, देखो उस फल की तरफ, अल्लाह के गौर करो, स्टडी करो, ताला करो
देखो उस फल की तरफ। हम तो खरीदते काटते खा लेते, कभी गौर नहीं करते कि अल्लाह कैसे इन चीजों को उगा रहा है। उन्जुरू देखो, इला समरिही, उस फल की तरफ। समर उर्दू का लफ्ज है, कहते हैं ना कि जितना मेहनत करें तो समरा अच्छा होगा, नतीजा में फल अच्छा होगा, है ना। उसके फल, उस फल की तरफ देखो, इजा अस्मरा, जब वो फलता है। जब क्या होता है, वो फलता है, वही नहीं, और जब वो पकता है। अल्लाह कह रहा है देखो फल की तरफ। अगर जैसे आम का सीजन है, आम की तरफ देखें, आम की तरफ देख कैसे वो फल बन रहा है, बढ़ रहा है, और कैसे पक रहा है। तो फल जो है कैसे बढ़ रहा है और कैसे पक रहा है, कि अभी कच्चा है, खा नहीं पाते, सोच कर जुबान खट्टी हो जाती, दिमाग खट्टा हो जाता है कि कितना खट्टा होगा, और वही फल पक जाता है तो चीनी की तरह मीठा हो जाता है। क्या कभी हमने इस पर गौर किया कि अल्लाह एक ही फल के अंदर खट्टापन और मीठापन कैसे पैदा कर दिया, एक ही चीज के अंदर। ऐसा नहीं कि कच्चा आम अलग होता है, पक्का आम अलग होता है। एक आम होता है जो शुरू से पका पैदा, ऐसा नहीं होता है। वो आम हो तो वही खट्टा होता है और वही पक के मीठा हो जाता है। अल्लाह करे उस पर गौर करो। इन्ना फी ज़ालिकुम लआयातिन लिकौमिन युमिनून, ईमान रखने वाली कौम की इसमें बेशुमार निशानियां हैं। जो मोमिन होगा ना इन चीज़ों पर गौर करें। सही बात है, देखिए मोमिन की पहचान, अब देखिए मेरा ईमान वाला होता है वो एक एक चीज़ को लेकर बड़ा गौर करता है। हम लोग कहते हैं कहाँ पड़े हुए, होता नहीं है, वो गौर में लग जाते अल्लाह ने क्या क्या बनाया है, क्या क्या अल्लाह ने बेहतरीन चीज़ें हम लोगों के लिए पैदा की हुई है। तो ईमान वालों के लिए अल्लाह ने कहा लाआयात, बड़ी बड़ी निशानियां हैं। आज का दर्स यहीं पर मुकम्मल हुआ है, नंबर 99। अगर कोई सवाल हो ऑनलाइन होता है तो आप लोग इसके ताल्लुक से पूछ सकते हैं। मैं एक्सप्लेन करके सवाल